Today we are going to cover basically what are you going to do in the last 2 days before your CAIE chemistry exam. Okay, so basically this video is going to be in more like English and Urdu mix. So if you are basically not familiar with Urdu, so I would suggest that you can read the subtitles, because since we at infinite levels are short in time and your papers are really near, so we are trying to cover and we are trying to make sure that we can help maximum students. So we are going to just go through as much as we can. We are going to make sure that all of the tips are basically given to you guys. So let's start today's video. And what are we going to basically cover in this video is that this video is basically for those students जिन्होंने अपना जो time था after their paper 2 or practical, they have used that up time and they are mostly done with their syllabus and they are mostly done with their P1 prep and they are on their track to get that perfect score. So this video is for them and I hope this will be helpful for you. So let's go through that. Okay, so since you're basically done with your 80% of your prep, so you are basically almost done with all your topicals past papers. You are done with some earlies. अच्छा, so since I have mentioned before that it's not important, like इतना ज़रूरी नहीं है कि भाई बैठ के you should do 20 earlies or 10 earlies or even 5 earlies. So yeah, what I think what is important here is basically how are you going to take that in a smart way. If you're going to do 20 past papers, you are going to be exhausted and trust me, पेपर वाले दिन बैठ के आपसे पेपर नहीं दिया जाएगा. यू विल बी मच ओवरवॉर्म्ड एंड आपको लगेगा कि यार मैंने बहुत कुछ कर लिया. एंड ट्रस्ट मी, उस टाइम पे बैठ के ना आप कंफ्यूज रहते हो इवन विद अ सिंपल क्वेश्चन. वाई? बिकॉज यू फील लाइक यार ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही डीप है, ये ऐसे नहीं होगा. सही है. यू हैव टू थिंक लाइक हाउ इज गोइंग टू एग्जामिनर टेस्ट यू आउट. सही है. एग्जामिनर ने आपको कैसे टेस्ट आउट करना है, आपने वो तरीके से करना है. राइट. तो अच्छा, तो लेट्स मूव टूवर्ड्स द बेसिकली द आइडिया, द एम बिहाइंड दिस वीडियो. अच्छा, तो एज आई हैव मैंशन दैट वट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू कि आपने जो कर लिया होगा दैट यू आर डन विद योर टॉपिकल्स, यू आर डन विद सम एयरलीज, like even you can say 4 to 5 works. So yeah, because here what are you going to cover up, आपने जाना है कि आप स्मार्ट वर्क यहाँ पर कितना करते हो. सही. देखो, हार्ड वर्क करना isn't a bad idea as well. So yeah, hard work is appreciated, but at the end of the day, just ask a question from yourself that if someone is going to see your efforts or grades. So yeah, simple बात है. You need that grades, you need to flex or whatever. You need that grades to show that कि भाई आपको आता है. You are an intelligent student. That's something, that's a sad reality, but you have to do that, right? अच्छा, तो बेसिकली अब आपने टॉपिकल्स भी कर लिए, आपने एलिस भी कर लिए, तब आपने लास्ट के 2 में क्या करना है. अच्छा देखो, तो यू हैव योर पेपर ऑन 4 जून, राइट. नाउ व्हाट शुड योर स्ट्रेटजी इज दैट कि अब आपके पास 2 दिन है. सही है. अब आपके पास आज का दिन है विच इज 2 जून एंड यू हैव योर 3 जून. अब आपने इन दोनों को कैसे लेके चलना है, इट्स गोइंग टू बेसिकली प्रेडिक्ट योर ग्रेड. सही है. अब आज के दिन बैठ के आपने करना क्या है कि आपने करने हैं डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस. अब डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आज मैं करने का इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इफ़ यू आर गोइंग टू डू इट टुमारो, अगर वो आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगे एंड लेट्स सपोज वो आपसे नहीं हो पाते हैं, कहीं आप लैग कर जाते हो एंड यू आर नॉट एबल टू डू दैट, तो व्हाट आर यू डूइंग इज़ योर बेसिकली जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो आपका शट डाउन हो रहा है. सही है. कॉन्फिडेंट आपका जब शट डाउन हो रहा है तो बेसिकली आप पेपर करते हुए इवन आपको 3 का स्क्वायर 9 नहीं लगेगा. सही है. एंड आई हैव डन दैट सेम मिस्टेक. आई डिड 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81. So it feels like something, really unpredictable from myself because I studied way too hard. I did all the stuff I could do. I tried my 100%. But what I did not have a proper sleep. So yeah, I neglected small topics and I made some blunders. So I want that कि वो blunders आप ना करो and you don't repeat the same mistake because even 1 marks बहुत मैटर करता है. सही है. मे बी ना लग रहा हो कि यार अगर 39 भी आ जाते तो सही है, बट वाई नॉट 40 मार्क्स, वाई नॉट एम फॉर द फुल मार्क्स. यू कैन. सही. आपके कैलिबर के अंदर है. जब आपके पास एक बच्चा 40 मार्क्स ला सकता है तो आप क्यों नहीं ला सकते. Change your mindset and change the way you are thinking. Okay, तो what you're going to do, you're going to difficult questions on today. सही है. 2 जून को आपने difficult questions करने. यू आर गोइंग टू मेक श्योर कि उनका आपके पास जो कॉन्सेप्ट है वो 100% आपका क्लियर हो, बिकॉज वही आपके पास जो बेसिकली टॉपिक्स हैं वो शायद सेम आए, वही सेम कॉन्सेप्ट आपके पास टेस्ट आउट हो. इतना हमें पता है कि भाई एग्जामिनर आपको
बैठ के वो 40 से 40 MCQs नए नहीं बना सकता, राइट। बट व्हाट ही कैन डू और शी कैन डू, वो उसका वैल्यूज चेंज कर सकता है। अगर लेट्स सपोज ने पास्ट ईयर के अंदर 30 सेंटीमीटर बोला हुआ था, 30 सेंटीमीटर आपकी वेव लेंथ है, तो मे बी वो कुछ और कर दे, राइट। ऐसे ही मे बी वो सिर्फ आपकी वैल्यूज चेंज कर दे, बिकॉज एग्जामिनर कैन नॉट मेक एग्जैक्टली 40 न्यू क्वेश्चन। ट्रस्ट मी, आराम से 20 क्वेश्चन आपके पास रिपीट होते हैं, एंड अगर आपने वो पैटर्न कैच कर लिया, सही है, तो यू आर सॉर्टेड, सही है, बेसिकली आप सॉर्ट आउट हो गए। अब आपने अपना पहला स्टेप तो कर लिया, अब आपका सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए। अब आपका जो सेकंड स्टेप है वो बेसिकली क्या है कि आपने डिफिकल्ट क्वेश्चंस कर लिए, एंड यू मेक श्योर दैट आपके कॉन्सेप्ट्स अब क्रिस्टल क्लियर हो गए, सही है। कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट ना रहे जो आपके पास बेसिकली अनक्लियर हो, सही है। यू नीड टू मेक श्योर ऑफ दैट, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। P1 is something like, I feel like that it's one of the easiest scoring in sense of that कि अगर आपने मेहनत कर ली, अगर आपने स्मार्ट वर्क कर लिया, तो आपका ग्रेड आपके हाथ में, एग्जामिनर आपको फजूल बातों के ऊपर बैठ के एग्जाम्स में नहीं काट सकता। ना वो आपके डेसिमल पे काट सकता है, ना वो SF में मार्क्स कर सकता है। इट्स समथिंग लाइक जो आपके कंट्रोल में है इजीली, एंड यू कैन इजीली डू दैट, राइट। तो आई फील लाइक दैट कि इस अपॉर्चुनिटी को आपने लेट गो नहीं करना। फॉलो दिस प्लान एंड मेक श्योर दैट यू गेट दैट 90 मार्क्स। सिर्फ वीडियो देख के आपने बंद नहीं कर देनी कि यार ने वीडियो देख ली तो मेरा तो सब कुछ हो गया, नहीं। वट वी कैन डू इज इन्फिनाइट ए कि हम आपको गाइड कर सकते हैं, हम आपको लेट कर सकते हैं कि यार आपने यहाँ से यहाँ तक आपने कैसे करना है, बट वी कैन नॉट डू एवरीथिंग फॉर यू। हम आके आपका पेपर नहीं दे सकते, सिंपल बात है। आपको पेपर खुद देना है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन, सही है। वट वी कैन डू इज अब आपको रियलिटी चेक कर सकते हैं कि यार दिस पेपर इज़ रियली इंपॉर्टेंट, आपका A levels बहुत मैटर करता है, सही है। O levels मैटर करता है ना, आपके पास अगर O levels आपके कंट्रोल में नहीं है, जो चीज़ आपके कंट्रोल में है उस पर फोकस किया जाए। अब आपने जब डिफिकल्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गए, अब आपने अपना फोकस करना है सिली मिस्टेक्स पर। अब सिली मिस्टेक कैसे निकालनी है, अब आपके पास इसके लिए दो ऑप्शन हैं, या तो एलिस पे जाओ, या फिर आप लेट्स सपोज आप अपने टॉपिकल्स पे जाओ। अब आपने बेसिकली करना क्या है कि यार आपने टॉपिकल्स में जाके देखना है कि यार जहाँ मैंने सिली मिस्टेक्स की हूँ। अब सिली मिस्टेक कैसे होती है कि लेट्स सपोज यहाँ पे आपको टेम्परेचर को केल्विन में करना था, आपने उसे कर दिया डिग्री में ही रहने दिया उसको, आपने उसे चेंज ही नहीं किया, तो यहाँ यू आर मेकिंग अ ब्लंडर एंड इट्स गोइंग टू कॉस्ट यू अ मार्क्स, सही है। 1 मार्क्स आपको यहाँ पर जाएगा। तो अब इस 1 मार्क को कैसे बचाना है, आपने एक चीज़ नोट डाउन करनी है कि जहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर की बात हो रही है वहाँ नो नीड टू चेंज, सही है। इट्स लाइक वेस्ट ऑफ टाइम, नो नीड टू चेंज सेल्सियस से केल्विन के अंदर, सही है, नो नीड टू चेंज दैट। बट जहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर की बात हो रही है वहाँ आपने करना है कन्वर्ट। ऐसे ही लेट्स सपोज आपको उसने बोला हुआ है कि यार नैनोमीटर्स हैं या फिर मिलीमीटर्स हैं, तो अब आपने इस चीज़ को फोकस करना है कि 10⁻⁹ या 10⁻³ है। डोंट कंफ्यूज इट विद मेगा समथिंग एल्स है। किलो की पावर 10⁻³ होती है, 10⁻6 होती है। इसको बहुत आराम से करना है। एंड वन मोर थिंग विच आई वुड 100% अप्रिशिएट दैट कि अपने आप को सेल्फ डाउट में भी नहीं रखना है, लेकिन इतना भी ट्रस्ट नहीं करना है। ट्रस्ट मी, आई वुड इवन सजेस्ट कि अगर 0.1 को मल्टीप्लाई बाय 100 भी करना है ना, आपके पास कैलकुलेटर भाई है, सही है, कैलकुलेटर है आपके पास, यूज़ दैट, नो नीड टू यूज़ योर ब्रेन। जहाँ स्मार्टली काम कर सकते हो वहाँ पे स्मार्टली करो एंड वहाँ अपने मार्क्स को गेन करो, फजूल में ज़रूरत नहीं है, सही है। तो अब यहाँ से आपने सेकंड चीज़ क्या करनी है, सेकंड स्टेप क्या है आपका कि आपने अपने कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर करना कर दिया आपने। अब आपने सिली मिस्टेक पर फोकस करना है, सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, गो थ्रू दैम, मेक श्योर दैट यू डोंट रिपीट दैम इन द एक्चुअल एग्जाम, सही है। आई एम लाइक सेइंग दिस अगेन एंड अगेन, रिपीट नहीं करनी मिस्टेक्स, रिपीट नहीं करनी, ओके। यहाँ तक आपकी चीज़ें हो गई 110% कवर। यह आपने कर लिया 2 जून के लेट्स सपोज 75% ऑफ द डे, सही है, ये आपका कवर अप हो गया ऑन द 75% ऑफ द डे। अब आपने नेक्स्ट 25% कैसे जुगाड़ना है, दैट मैटर्स अ लॉट। अब या तो आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ पे अर्ली कर लो, बट मैं यहाँ पे अर्ली सजेस्ट नहीं करूँगा। द रीज़न बिहाइंड इज दैट कि यहाँ पे आपका अगर अर्ली सजेस्ट कर दिया ना, तो लेट्स सपोज आपका वो अच्छा नहीं जाता है, आपका मोरल डाउन हो जाएगा, सही है, आपका कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, और आपका जो अगला दिन है 3 जून, उस दिन बैठ के आपके पास कोई मोटिवेशन नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। जितने भी डिसिप्लिन पर्सन हो, मोटिवेशन ज़रूरत होती है फॉर एनी वन एट ऑल, सही है। मोटिवेशन टू सम एक्सटेंट आपको चाहिए होती है कि यार मैंने इतना अच्छा कर लिया, मैं थोड़ा और कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे गिव अप नहीं करता, राइट। तो अब आपने बेसिकली 25% में आपने करना है, यहाँ पे करना है रिवाइज। अब रिवाइज कैसे करना है, आपके पास इसके 2 तरीके होते हैं, या तो आप बैठ के नोट से रिवाइज करो। अच्छा, नोट्स अब यहाँ पे मैं आई वुड सजेस्ट किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कर लो, बिकॉज राइट नाउ इन्फिनाइट लेवल्स पे नोट्स नहीं है एंड वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ यू, बहुत कुछ करना है ना आप लोगों के लिए। तो इन्फिनाइट लेवल्स पे तो फिलहाल नोट्स नहीं मिल जाएंगे, पर इंशाल्लाह अक्टूबर नवंबर तक वी विल हैव फुल फ्लैज क्लासेस, वी विल हैव एवरी सिंगल थिंग
required for A levels, and we will try to make sure that it's free of cost. So yeah, that's the one thing we are aiming that हम आप लोग को 0 से 100% लेकर जाएं without any much cost आप लोग के लेके जाएं, because A levels is already much expensive, colleges, tuitions and all that stuff. तो we need to make sure that आप लोग का infinite A levels से almost 0% में 0% मनी के अंदर आपका सब कुछ कवर अप हो जाए। दूसरी चीज़ ये कि आपने अपने एलीज को स्किम थ्रू करना है। स्किम थ्रू का मतलब क्या है, देखना है कि एक तो पैटर्न क्या है और कहाँ कंसिस्टेंटली आपने मिस्टेक्स की हैं। लेट्स सपोज यू हैव मेक मिस्टेक्स इन SP2 हाइब्रिडेशन या फिर वेस्पर थ्योरी में आपने सही तरह नहीं की, तो उस पर अब आपने यहाँ पे फोकस करना है। ये आपका थर्ड स्टेप हो गया। अब यहाँ तक आपका सेकंड जून आपका कवर अप हो गया। अब आपके पास बात आती है कि आपने थर्ड जून में क्या करना है। थर्ड जून को आपने मेक श्योर करना है दैट यू हैव अ हेल्थी ब्रेकफास्ट। आई नो पेपर वाले दिन नहीं है, बट ब्रेकफास्ट की ज़रूरत है। अब आपने यहाँ पे बैठ के करना है, आपने यहाँ पे एक एरिया टाइम करना है। आई वुडेंट सजेस्ट कि बहुत ही डिफिकल्ट पेपर करना या फिर बहुत ही आसान करना। आई वुड सजेस्ट एक मॉडरेट पेपर कर लो एंड यू आर गुड टू। ठीक है, इवन 30+ भी आ रहे हैं तो अच्छी बात है, बट आई वुड सजेस्ट दैट कि यहाँ पे आकर 35+ आने चाहिए, बिकॉज आप फर्स्ट डे से तैयारी कर रहे हो आफ्टर योर P2, राइट, एंड यू हैव डन अ लॉट एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम यू। डोंट हैव टू गिव अप, डोंट गिव अप। यहाँ पे बैठ के लास्ट 2 दिन बहुत मैटर करते हैं। अब आपका जब एयरली हो गया उसको प्रॉपर एनालाइज करना है यहाँ पे बैठ के। हमारे यहाँ पे बताऊँ क्या होता है, व्हाट वी हैव दैट माइंडसेट कि यार अगर हमने 10 एयरलीज कर लिया ना, हमारा तो ग्रेड A* बन जाएगा। नहीं बनेगा। 20 भी कर लोगे ना फिर भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि व्हाट आर यू फोकसिंग हियर, आप कॉन्सेप्ट पे फोकस नहीं कर रहे। यू व्हाट आर यू बेसिकली फोकसिंग इज दैट कि आपके एयरलीज हो जाए। एक बस यू कैन से एक स्टीरियोटाइप बन गई कि यार अगर मैंने एयरलीज कर ली तो मेरा तो फुल सेट हो गया, आई एम फुल सेट फॉर माई पेपर 1। नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं होता। इसको एनालाइज करना है, अपने वीक टॉपिक्स को देखना है, फॉर्मूलाज रिवाइज करने हैं। आई वुड सजेस्ट कांस्टेंट की वैल्यूज़ भी आपको आनी चाहिए। नो नीड टू गो थ्रू दैम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर क्या होती है वो आपको पता होनी चाहिए। सेकेंडली यूनिट्स, इट्स समथिंग लाइक दैट जो आपने बहुत फोकस करना है। एक तो यूनिट वाली चीज़ हो गई, दूसरी आपके कीवर्ड्स हो गए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कीवर्ड्स को निगलेक्ट कर देते हैं। हम लोग करते हैं, हम लोग डायरेक्टली एक्साइट होते हैं और हम क्या करते हैं, हम जंप अप कर देते हैं टू डायरेक्टली व्हाट आंसर। भाई ऐसा नहीं करना। क्या करोगे आंसर देके जब आपका आंसर ही आपको 100% वेरीफाई नहीं है कि ये आंसर है उसका। डोंट गो फॉर दिस प्लान। आपने पहले प्रॉपरली क्वेश्चन को एक दफ़ा पढ़ना है एंड देन उसके बाद सॉल्व करना है। तो ये आपने 3 जून को आपका ऑलमोस्ट 50% डे चला गया, सही है। 25% आपने रिलैक्स भी करना है। अब आपके पास बचा 25% आपका। अब 25% बैठ के जो आपके वीक टॉपिक्स थे उसके आपने कॉन्सेप्ट्स को अब 100% करना है। आई वुड सजेस्ट 10 से 20 क्वेश्चन करो पर टॉपिक एंड दैट्स गुड, दैट्स मोर देन गुड। यहाँ पे 100 क्वेश्चन करने बैठोगे आप, यहाँ पे आपका गेम खत्म, गेम ओवर हो जाएगा। सिंपल बात है। And I'm really sorry if my writing is not that good because we need to make sure that we are able to post this video आज ही and we will try to do that. अच्छा, तो आपका यहाँ पे बेसिकली गेम ओवर हो जाएगा अगर आपने 10 से 20 क्वेश्चन ज़्यादा किया, बिकॉज यू डोंट हैव मच टाइम। अगर आपके पास एक टॉपिक है फिर कर लो भले 50 क्वेश्चन, लेकिन मैं इतना नहीं बोलूँगा बिकॉज लास्ट डे है, ओवरवेल्म भी नहीं होना, बर्डनाइज भी नहीं होना, रिलैक्स होकर जाना पेपर में। बिकॉज एंजाइटी स्ट्रेस के साथ तुम्हारा कुछ भी नहीं होना। एंजाइटी एंड स्ट्रेस में तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलेगा। जहाँ तुम 30 MCQ सही करने वाले थे, अब तुम बैठ के कितने करोगे सही? 20 करोगे। उनमें भी तुम्हें सेल्फ डाउट रहेगा, यार ये मैंने सही भी किए नहीं किए, एंड दिस इज गोइंग टू लेट यू डाउन। नहीं हो पाएगा, तुम्हारा ग्रेड नहीं बन पाएगा। सिंपल बात है, रियलिटी चेक दे रहा हूँ साफ साफ है। अब आपने सब कुछ कर लिया, तब आपको जो अब लास्ट का 25% रह गया वो कैसे करना है? अब आपने करनी है हमारी फैक्ट शीट। ये फैक्ट शीट आपके पास लास्ट के 20 ईयर्स ऑफ पास्ट पेपर्स से बनाई गई होगी। ये वो इन्फो होगी जो बेसिकली आप मोस्टली बच्चों को नहीं पता हो। ट्रस्ट में नहीं पता होती। एट माई टाइम मुझे भी नहीं पता थी एंड आई वाज लाइक शॉक, यार ये भी है सिलेबस में। बिकॉज एग्जामिनर आपके पास इतने ट्रिकी क्वेश्चन देता है कि उसके लिए आपको ट्रिकी वेज ढूंढने पड़ते हैं। जब तक आपके पास ईजी वेज नहीं होंगे, यू आर गोइंग टू लैग, यू आर गोइंग टू फॉल डाउन। तो इसके लिए आपको ट्रिकी क्वेश्चंस के लिए आसान वे भी चाहिए, अपने आप को आसान भी करो। ये फैक्ट शीट आपने यूज़ करनी है। दिस हैज़ बीन यूज बाय 100+ स्टूडेंट्स लास्ट ईयर एंड दे गॉट अ प्रिटी गुड स्कोर बिकॉज उनको लास्ट डे पे मिली थी एंड उनकी जो प्रैप थी वो बूस्ट अप हो गई थी, राइट। तो मैं तो बोलूँगा देख लेना। बाकी ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे आपकी चॉइस है, इट्स योर चॉइस, बट जनरली आई वुड सजेस्ट दैट कि ये चीज़ आपने ज़रूर करनी है। अच्छा, तो अब आते हैं हम बस ट्रिक्स एंड उसके ऊपर। क्या करना है आपने लास्ट डे? मेक श्योर कि आपने नींद ज़रूर लेनी है, सही है। देखो लास्ट के 8 घंटों में ना बैठ के आपने पूरा सिलेबस नहीं हो सकता।
इट्स इलॉजिकल बात। अगर हाँ फिर भी करना है, बिकॉज मैंने भी एक ट्रिक यूज़ किया कि 12 से 5 सो जाओ, फिर 5 बजे उठो, वेकअप एट 5 एंड यू हैव 8 तक टाइम। सही है, आपने 9 बजे, आपका 9 बजे पेपर स्टार्ट होता है, 5 से 8 पढ़ सकते हो। फजर की नमाज़ पढ़ो, अल्लाह ताला से दुआ करो कि कोई मिरेकल होकर तुम्हारा 35+ बन जाए। क्योंकि देखो आपके पास नेक्स्ट ईयर आपका A2 है, उसमें आपके पास वैसे ही एंट्री टेस्ट बहुत कुछ होता है, कवर अप करने का बहुत चीज़ें होती हैं, नहीं हो पाता। तो अब भी जितने मार्क्स ला सकते हो उतने लेकर आओ, फजर में नमाज़ पढ़ के पढ़ना शुरू करो, रिवाइज करना, डोंट निगलेक्ट स्मॉल टॉपिक्स। इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं एक और दफ़ा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और एग्जामिनर बहुत ही वेट पैटर्न लेकर आ रहे हैं। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं कि पेपर आएगा कैसे। सही है, इट्स फ्रॉम इन्फिनाइट इलेवल्स की प्रेडिक्शन से, प्रेडिक्शंस पेपर आने वाला है आपका वियर्ड। सही है, वियर्ड इन सेंस ऑफ दैट शुरू के 15-20 क्वेश्चंस आपके पास होंगे न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स मतलब कैलकुलेशन सारी आपकी कवर अप हो रही होंगी इसमें, बहुत, यू कैन से इट्स गोइंग टू बी एग्जॉस्टिंग। सारी एनर्जी आपकी यहाँ पे चली जाएगी और सारा आपका जो छोटा सा दिमाग है, मजाक कर रहा हूँ, दिमाग बहुत अच्छा है आप लोगों का माशाल्लाह से, तो वो आपका सारा यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगा। जब यहाँ पे सारा यूटिलाइज हो जाएगा तो दिस इज गोइंग टू कॉस्ट यू अ लॉट। सही है, तो व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटेजी। पहली बात तो स्ट्रेस नहीं लेना, जहाँ पैनिक कर रहे हो वहाँ 2 मिनट का ब्रेक। सही है, 2 मिनट का ब्रेक लो, पानी पियो एंड देन रीस्टार्ट अगेन। सही है, 2 मिनट तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन अगर तुमने वो पैनिक करके पेपर स्टार्ट किया तो तुम्हें आते भी होंगे ना इजी क्वेश्चंस, वो भी तुम्हारे गलत हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे आपने ये करना है। अब आपको जब देखे ना 5 से 10 क्वेश्चन आपके पास सारे न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, और एक दफ़ा पेपर घुमा पर आके देखो कि यार 10-20 भी आपके पास क्या है, न्यूमेरिकल्स हैं, फैक्ट क्वेश्चन नहीं है, तो आप करना क्या है, भागना है पीछे। बोलो भाई मैं तुम्हें बाद में देखूंगा, लेट्स गो टू द बैक ऑफ द पेपर। बैक ऑफ द पेपर जाओ, रिवर्स से शुरू करो, 40 से 25 तक करो। ये सारे होंगे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। एग्जामिनर क्या कर रहा है, एग्जामिनर तुम्हारे साथ चलाकियाँ कर रहा है, उसको शौक है भाई बच्चा फेल हो जाए, वापस रीटेक देगा, हमारे पास वापस पैसे आएंगे, राइट। तो अब आपने 40-25 वाला पहले कवर अप करना है इसको, फिर अब उस पर जाना है। तो एटलीस्ट तुम्हारे जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जो रट्टा होता है बेसिकली आपका, वो आपका कवर अप हो जाएगा, उसमें तुम निगलेक्ट नहीं करोगे, वो तुम्हारा अच्छा चला जाएगा। जब वो अच्छा चला जाएगा तो फिर न्यूमेरिकल्स में अगर तुम्हारे 5 भी गलत हो जाते हैं, लेट्स सपोज 20 में से, तो यू आर गुड टू गो। 35 इज़ अ गुड स्कोर, इवन 33-32 इज़ अ गुड स्कोर आई वुड से। फिर अब एक लास्ट चीज़ आती है, डोंट निगलेक्ट स्मॉल टॉपिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स नहीं करनी है आपने निगलेक्ट, जो भी स्मॉल टॉपिक्स, सॉरी न्यूक्लियर फिजिक्स, आई एम रियली सॉरी, न्यूक्लियर फिजिक्स नहीं, जो भी आपके पास स्मॉल टॉपिक्स हैं केमिस्ट्री में, वो आपने नहीं करने निगलेक्ट। वेस्पर्ट थ्योरी ज़रूर आती है, ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ग्राफ्स को एक दफ़ा व्यू करके जाना, सारे चैप्टर्स देखना, एक दफ़ा सिलेबस ओवरव्यू बहुत ज़रूरी होता है। सही, सिलेबस ओवरव्यू बहुत होता है, इससे भी तुम्हारे 2-3 मार्क्स बच जाएंगे, ट्रस्ट में बचेंगे, जब मैं बोल रहा हूँ तो बचेंगे। अब लास्ट टाइप क्या है, टाइम मैनेजमेंट। जो लास्ट पेपर तक कर रहे हो ना एक दिन पहले, उसको करो 50 से 55 मिनट्स में। क्यों बोल रहा हूँ, ताकि तुम्हारे पास 20 मिनट बचेंगे। यहाँ पे 20 मिनट यहाँ पे बच रहे हैं ना, वो तुम्हारा एंगजाइटी स्ट्रेस ले लेता है। सारे आपके पास जो ये 25 बच रहे हैं ना आपके 20-25 मिनट्स घर पे, वो 10 से 15 मार्क्स आपके चले जाते हैं एग्जाम की एंगजाइटी में। भाई एग्जाम का प्रेशर अलग होता है, जितना भी आप उससे कर लो, अकेडमी में चले जाओ, एग्जाम की एंगजाइटी इज समथिंग ऑन, यू कैन से न्यू लेवल होती है। तो जब आपके पास 10-15 मिनट और चले जाएंगे ना, तो आपके बचेंगे आप 10 से 5 मिनट। जब 10 से 5 मिनट बचेंगे तो बैठ के रिव्यू करोगे, तुम्हारे 5 से 6 क्वेश्चन गलत से सही हो जाएंगे। तो आई फील लाइक दैट समथिंग आई हैव गिवन यू अ फुल परफेक्ट गेम प्लान, एंड दिस इज समथिंग विच आई वांटेड इन माय प्रेप, मुझे नहीं मिला, तुम लोग को मिल रहा है। इसको रीवॉच कर लेना इफ यू फील लाइक मैंने बहुत जल्दी बोला है तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, एंड आई विल ट्राई दैट मैं थोड़ा आराम से बोलूँ। बट द थिंग इज दैट आई एम बिजी एज वेल विद सम ऑफ माई थिंग्स, एंड आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट आप लोग की चीज़ें कवर अप हो जाएँ। तो बेस्ट ऑफ लक, एंड आई वॉन्ट दैट कि आप सबका अच्छा स्कोर है। कोई भी क्यूरीज हैं इंस्टा पे DM करो। सही है, इंस्टा पे हमें DM कर सकते हो, वहाँ पे सारी क्यूरीज पूछो, एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट दैट यू गेट एवरी सिंगल थिंग फॉर दैट। आपको एक एक चीज़ मिलेगी इंशाल्लाह, एंड इंशाल्लाह आपका पेपर इंशाल्लाह अच्छा जाएगा। आमीन। आई विल मेक श्योर दैट मैं आप लोग के लिए तहज्जुद में दुआ भी करूँ, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। सही है, कोई भी मसला है कमेंट में भेज दो, एंड वी विल ट्राई टू मेक श्योर इट उसको हम विद इन नेक्स्ट 15-10 मिनट्स में आपको उसको कवर कर दें। बट इन केस नहीं करते तो विद इन 5 to 6 आवर्स वो आपके पास आपका रिप्लाई आ जाता है। उसके अलावा ये चीज़ें हो गई हैं आपकी, इंशाल्लाह अच्छा जाएगा। मेक श्योर करना कि ट्रिक क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपको वो क्वेश्चंस मुश्किल लग रहे हैं, इसका मतलब बाकी स्टूडेंट्स भी लाइक कर रहे हैं, तो थ्रेशोल्ड फिर आपका ग्रेड थ्रेशोल्ड आपका फिर कम जाएगा। सही है,
एंड दैट्स वेरी मच इट, एंड अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। और